Hello students, this is JB Gupta again with you in the JEE NEET Toppers file. This is video number 2. So students, the second most important quality that I have observed among all the toppers has been the tendency never to accept defeat. Yes, it's a very big thing, never to accept defeat. Every question has an answer, but quitting is never the answer. Struggles may slow you down, but they can never stop you. Either you set for your dreams or spend life making excuses. Fight isn't over until you win. The only true defeat is accepting the defeat. Everything else is just a step forward. When the world gives up, you don't. When doubts surround you, you rise. Success goes only to those who never learn to quit. Keep your struggle alive. Your victory is waiting. Friends, मैं आपको दो लीजेंड्स की सक्सेसफुल स्टोरी बताता हूँ. One, the god of cricket, Sachin Tendulkar. It was 2003-2004 Gavaskar Border Series in Australia at Sydney. Australia had a very strong bowling attack, and Sachin was struggling. He hadn't scored a century since last 13 innings, but he did not accept the defeat. He scored 241 not out in the first inning, and उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन में. सो आप देखेंगे रिवर्स कंडीशंस में भी सचिन तेंदुलकर ने कैसे डिफीट को एक्सेप्ट ना करके और एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी. एक दूसरे रीजन, माइकल जॉर्डन, द शॉट. इट वाज 1989 प्ले-ऑफ्स, बुल्स वर्सेस क्लीवलैंड कैवलियर्स. बुल्स वर डाउन बाय 1 until the last second, just few seconds left. The Jordan hits a buzzer beater, the shot, to win 101 against 100. So again, see, the Jordan didn't accept the defeat literally until the last second of the match, and eventually he and the team won. Dear JEE NEET aspirants, आपको भी बस exactly यही करना है. Ups and downs आएंगे, टेस्ट में कभी कम मार्क्स, कभी ज़्यादा मार्क्स आएंगे, but you don't accept the defeat. Just try to eliminate your weakness, try to eliminate where you are doing the mistakes, and eventually you'll be the winner. So students, now one very important concept for the JEE NEET aspirants both. I'll clear this example through two very good questions. So students, जो concept है, it is this कि कैसे आप इन questions में work energy का method apply करोगे, ना कि force का. और क्यों? I'll explain you. आप क्वेश्चन देखोगे. द क्वेश्चन इज कि आपके पास एक ब्लॉक है m1 मास का, इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k and a block of mass m2, and the floor is rough. The coefficient of friction is mu. The coefficient of friction is what? It's mu, right? Now the question is that, अच्छा देखो, initially there is no compression or elongation in the spring. मतलब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन इनिशियली नहीं है. और आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आप कितना मिनिमम फोर्स एक्सर्ट करोगे, द एफ मिनिमम फॉर विच ब्लॉक m1 just starts moving. What should be the minimum value of f so that the block m1 just starts moving? All right. वैसे पहले आपको करेक्ट सॉल्यूशन एनर्जी मेथड के थ्रू दिखाता हूँ. सो करेक्ट सॉल्यूशन ये कि आपने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, आपने अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पीछे है, स्प्रिंग का फोर्स पीछे है, बट स्टार्टिंग में क्योंकि अभी स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं हुआ है, तो जो स्प्रिंग का के एक्स वाला फोर्स होगा वो कम होगा, और ये जो ब्लॉक m2 एक्सेलरेट कर रहा होगा और ब्लॉक को वेलोसिटी मिल रही होगी. कुछ देर के बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो अभी भी कांस्टेंट है, बट स्प्रिंग वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ब्लॉक में रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि केक्स वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ब्लॉक में रिटार्डेशन आएगा और इवेंचुअली ब्लॉक रुक जाएगा. सपोज कि ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस जाकर के रुकता है, तो आपने जो वर्क किया एफ इंटू एक्स, इसका कुछ पार्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वेस्ट हो गया, म्यू m2 g इंटू एक्स. इज दैट क्लियर?
म्यू एम टू जी इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपसे बोला इतना अमाउंट ऑफ वर्क, ये नहीं, इट्स ए निगेटिव वर्क। तो अगर मान लो कि मैं करता, आपने इतना पॉजिटिव वर्क और इतना निगेटिव वर्क, तो मैं इसे सबट्रैक्ट करता इस ओर। सो मैंने उसी चीज को दूसरी ओर लिख दिया कि जो टोटल वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, उसका कुछ पार्ट फिक्स रन के अगेंस्ट वेस्ट हो गया और कुछ पार्ट स्प्रिंग में स्टोर हो गया ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब जब ये ब्लॉक रुका, उस मोमेंट पे अगर x की वैल्यू इतनी है कि जो आगे की ओर m1 के ऊपर फोर्स है kx, इफ kx इज इक्वल टू जस्ट व्हाट, म्यू m1g, दिस ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, बिकॉज उस मोमेंट पे kx की वैल्यू कितनी हुई, म्यू m1g। सो बच्चों आप देखो यहां से आपने kx की वैल्यू इसमें डाल दी, एक x विल बी कैंसल्ड एंड दिस बिकम्स f इज इक्वल टू म्यू m2g plus half of kx, and kx is what, mu m1g. So there's a correct answer. इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर? इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि ब्लॉक m1 में मोशन जस्ट स्टार्ट हो। अब आप देखो इसी को, अगर कोई स्टूडेंट इसे फोर्स के मेथड से सॉल्व करता तो क्या होता, बोलता कि मैंने फोर्स F अप्लाई किया और इक्विलिब्रियम के लिए, जो मैं अब ऊपर इक्वेशंस लिख रहा हूँ ये इनकरेक्ट इक्वेशंस हैं, वो बोलता कि F इज इक्वल टू म्यू m2g प्लस के एक्स, पीछे की ओर का फोर्स के एक्स प्लस म्यू m2g, राइट? F इक्वल्स टू म्यू m2g प्लस के एक्स। मैं इसे थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर, आई होप नाउ विजिबल हो, राइट? म्यू m2g प्लस व्हाट, के एक्स। अब वो बोलते कि के एक्स, ऐसे केस में के एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू m1g। इज दैट क्लियर? सो अब आप देखो, अगर इक्विलिब्रियम में जाकर के, मतलब जब एफ की वैल्यू म्यू एम टू जी प्लस के एक्स, तो इक्विलिब्रियम में जाकर के होगी, तो इक्विलिब्रियम के पहले तो फोर्स एफ बड़ा होगा, द रीजन बीइंग के एक्स छोटा होगा। तो जिसे आप बोलते इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ब्लॉक m2 की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स कि ये ब्लॉक उससे और आगे पहुंचेगा, ये ब्लॉक उससे और आगे जाएगा। जब ये और आगे जाएगा तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और के एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो दैट मीन्स कि जो हमें एक मिनिमम फोर्स नीडेड था, तो हमने उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट? हमने क्या करा, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया। आप समझ गए ना? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग से ही इतना फोर्स अप्लाई किया, के एक्स की वैल्यू म्यू m1g, आपने स्टार्टिंग से इतना फोर्स अप्लाई किया, तो स्टार्टिंग में जब आपने एक कांस्टेंट फोर्स म्यू m2g प्लस म्यू m1g अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में के एक्स तो छोटा है, बिकॉज एक्स की वैल्यू कम है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा। और जब ये वाली पोजीशन आएगी, जब आपने बोला एफ इक्वल टू म्यू m2g प्लस म्यू m1g, उस मोमेंट तक ये ब्लॉक कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, तो अब ये और आगे जाएगा। अब के एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये ब्लॉक में रिटार्डेशन आएगा, तो ये ब्लॉक और भी आगे जाएगा, मतलब ये एक्स इज इक्वल टू म्यू m1g से भी ज्यादा फोर्स मिल जाएगा। और आपको रिक्वायर्ड क्या था, मिनिमम फोर्स। इज दैट क्लियर? मैं एक ऐसा ही दूसरा एग्जांपल और देता हूं, आप ठीक से देखोगे। अब मान लो ये है कि आपके पास एक पुली, आइडियल पुली, और इसके थ्रू एक स्ट्रिंग पास होती है, दूसरे एंड में एक स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के अटैच्ड है, और यहाँ पे एक ब्लॉक m1, राइट? ये है स्टार्टिंग में इस सिस्टम को होल्ड किया गया है इस तरीके से, ये ब्लॉक, द ब्लॉक m1 इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और स्प्रिंग में अभी कोई एलोंगेशन नहीं है, मतलब इसे इस तरीके से होल्ड किया गया होगा स्ट्रिंग को कि स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं है, और ये ब्लॉक ग्राउंड पे है। अब आपसे पूछा गया व्हाट मिनिमम मास m2, m2 की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम should be suspended here, should be suspended here, so that m1 is just lifted। m2 की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए m1 ग्राउंड से जस्ट लिफ्ट करा लिया जाएगा, राइट? अब फिर से मैं एनर्जी की मेथड से करता हूँ। मानो कि m2 की मिनिमम वैल्यू जो मैंने ली वो m2 है, तो जब आपने m2 को सस्पेंड किया और सडनली छोड़ दिया सिस्टम को फ्री, तो ये ब्लॉक x नीचे गया, इसकी पोटेंशियल का जो लॉस हुआ वो हुआ m2g,
इसकी पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ, m2g इंटू एक्स, क्योंकि ये x नीचे गया, राइट। अब जब ये नीचे गया होगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ होगा, और स्प्रिंग में x इलोंगेशन हुआ, तो वो स्प्रिंग की पोटेंशियल ये फॉर्म में आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे आपने के एक्स की वैल्यू निकाली, के एक्स इज इक्वल टू 2m2g। के एक्स बिकम्स इक्वल व्हाट, 2m2g। एक x से x कैंसिल हुआ। इज दैट क्लियर? अब उस मोमेंट पे ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया है। अगर ये रेस्ट पे नहीं आया होता तो मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो ली होती। आपने जब m2 ब्लॉक सस्पेंड किया तो ये ब्लॉक x नीचे गया और रुक गया। तो फिनोमेनन डिफरेंट वे में होगी। स्टार्टिंग में m2 बड़ा है, स्प्रिंग का फोर्स क्योंकि स्टार्टिंग में kx छोटा होगा, तो वही टेंशन होगा, स्प्रिंग का फोर्स होगा। स्प्रिंग का फोर्स कम है, टेंशन t कम होगा, m2 एक्सेलरेट करेगा, ग्रेजुअली x की वैल्यू इंक्रीज होगी, और kx दैट मीन्स की टेंशन t बड़ा होता जाएगा, फिर ये ब्लॉक रिटार्डेशन में आएगा और रुकेगा। मैंने क्या लिया, बस जब ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रुका, उस मोमेंट पे m2g x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसके लिफ्ट कराने के लिए के एक्स शुड बी इक्वल व्हाट, m1g। अब आपने यहाँ पे किया कि के एक्स इज इक्वल टू m1g is equal to twice of m2g, so m2 is equal to m1g, m2 is equal to m1 by 2, m1 by 2, this is a minimum mass। अब अगर कोई बच्चा इसी को फोर्स के मेथड से सॉल्व करता तो उसके इक्वेशंस जो कि गलत है वो क्या होते, उसके इक्वेशंस होते कि m2g is equal to t is equal to kx is equal to m1g is equal to what, m1g, right students, is equal to what, m1g। थोड़ा सा नीचे कर लो मैसे, दिस क्लियर नो। सो इससे m2 m1 के इक्वल आता, बट इसमें फिर से फोर्स के मेथड में प्रॉब्लम क्या थी, अगर आपने स्टार्टिंग से मास m2g को m1g के इक्वल करा तो स्टार्टिंग में तो kx नहीं है। जब ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आएगी तब तक m2 एक वेलोसिटी गेन कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर का फोर्स छोटा और नीचे का फोर्स एक फिक्स है, m2g बड़ा है। तो जब इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आएगी ये ब्लॉक वहां रुकेगा नहीं और आगे जाएगा, और आगे जाने से जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में वो मोर देन रिक्वायर्ड एलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब के एक्स की वैल्यू m1g से भी बड़ी हो जाएगी। सो दिस विल बी द फोर्स बट नॉट द मिनिमम फोर्स needed for the block m1 to get lifted। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मींस कि आपको फोर्स के मेथड से ना सॉल्व करके एनर्जी के मेथड से सॉल्व करना है। ये कुछ एक और भी सिचुएशंस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसे आप ठीक से रियलाइज करना और अपने आप में इम्बाइब करना।